Hello, good morning, namaskar, jai hind साथियों. This is Chandan Kumar Rana. Welcome you all in Wisdom Island classes. Well, my dear students, in the previous lecture of triangle, we have already studied how one can prove triple A similarity. And now, today we are going to prove triple S similarity. So, our today's class will be very important and I hope you all will watch the video till the end. So, dear students, let us start with triple S similarity. What does it tells? So triple S similarity tells us that if corresponding sides of two triangles are in same proportion, then their corresponding angles will be equal. It is very important to understand what is given in the statement and what we have to prove. What is given here? If corresponding sides of two triangles are in same proportion, means the sides of these two triangles are in same proportion, then we have to prove that their corresponding angles will be equal. So let us start what is given here and then we will find out what we have to prove here and then we will see the proof part. So let us start what is given here. Given that ABC and DEF are two triangles in which ABC and DEF are two triangles in which AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by EF. That is what given in the statement. So what is given here? That their corresponding sides are in same proportion. Now what we have to prove here? We have to prove that their corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. It means what? Angle A will be equal to angle D, angle B will be equal to angle E, and angle C will be equal to angle F. That is what we have to prove here. That is angle A will be equal to angle D, angle B will be equal to angle E, and angle C will be equal to angle F. That is what we have to prove here. Well, my dear students, let us start with the construction now, and whatever we have done the construction part in the previous proof, that is of triple A similarity, the same thing we are going to do here also. What we have done there? That we have taken a point on DE in such a way, suppose we have taken a point P here and here it is Q. So we have taken a point P on DE in such a way that DP will be equal to AB and DQ will be equal to AC. I hope you have understood it. I have taken a point P on DE in such a way that DP will be equal to AB, and once again I have taken a point Q on DF in such a way that DQ will be equal to AC. Now we will join PQ. Now we will write it in the construction part. Construction, what we have done here, we take point P, we cut P on DE and Q on DF in such a way that AB equal to DP and AC equal to DQ. Now pay attention. What we have done here, we have done the construction that in such a way that we have taken a point P on DE and point Q on DF in such a way that DP will be equal to AB and DQ will be equal to AC. Now let us start with the proof part. Proof. What we have to prove here? Here we have to prove that their corresponding angles will be equal. Now we will start the proof part with what is given in the statement. जो भी दिया हुआ है उसी को हम लेकर के चलेंगे और आगे हम इसको प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले मेरा क्या दिया हुआ है कि AB by DE equal to AC by DF equal to BC by EF, ये मेरा गिवन है. इसको हम मान लेते हैं ये मेरा स्टेटमेंट 1 है या फिर ये मेरा इक्वेशन 1 है. अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन से किया है कि AB जो है मेरा वो DP के बराबर है और AC जो है मेरा वो DQ के बराबर है. तो क्या हम इस जगह पे
ए बी के जगह पे क्या हम डीपी रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम चलिए फर्स्ट इक्वेशन में ही हम क्या कर दे रहे हैं, ए बी के जगह पे डीपी रख रहे हैं, डीपी बाई डीई इक्वल टू ए सी के जगह पे क्या रख सकते हैं, डीक्यू रख सकते हैं, तो डीक्यू बाई डीएफ। इज इट क्लियर? अभी सिर्फ हम एक दो ही पार्ट को लेके चल रहे हैं। डीपी बाई डीई इक्वल टू डीक्यू बाई डीएफ, ये बात हम क्लियरली लिख सकते हैं। कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू डीपी एंड ए सी इक्वल टू डीक्यू, ये बाई कंस्ट्रक्शन मेरा किया हुआ है। तो इन प्लेस ऑफ ए बी वी कैन राइट डीपी एंड इन प्लेस ऑफ ए सी वी कैन राइट डीक्यू। नाउ लेट यू ऑल ऑब्जर्व हियर, डीपी बाई डीई इक्वल टू डीक्यू बाई डीएफ, डीपी बाई डीई इक्वल टू डीक्यू बाई डीएफ। कैन यू फील समथिंग? यस, व्हाट इज हियर? अब देखिए ये मेरा dp बाई डी हो गया और dq बाई df हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कि मेरा pq जो होगा वो ef के पैरेलल होगा। ऑफ कोर्स कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन किसी अन्य दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो वो लाइन मेरा थर्ड साइड का पैरेलल होता है। तो वही चीज यहां पे हम लोग करेंगे। जब dp बाई डीई इक्वल टू dq बाई df हो गया तो डेफिनेटली मेरा pq जो होगा वो ef के पैरेलल होगा। देयरफॉर हियर वी कैन राइट pq विल बी पैरेलल टू ef। अब बताइए pq जब मेरा ef के पैरेलल हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस केवल ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, आप अंत तक देखिएगा, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये PQ मेरा EF के पैरेलल हो गया, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये एंगल E जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा और एंगल F जो होगा वो मेरा एंगल Q के बराबर होगा। कैसे? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल P एंड एंगल F विल बी इक्वल टू एंगल Q। बिल्कुल कह सकते हैं हम, क्योंकि मेरा PQ जो है वो EF के पैरेलल हो गया। अब देखिए E मेरा P के बराबर और F मेरा Q के बराबर, और एंगल D कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। जब आप ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF पे जब चलेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एंगल E P के बराबर है, एंगल F Q के बराबर है और एंगल D मेरा कॉमन है। तो यहां से कह सकते हैं कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से, बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट, बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी वी कैन से दैट ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है मेरा और ये कॉमन है, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल DPQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF का। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो मेरा प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? dp बाई डीई इक्वल टू dq बाई df इज इक्वल टू pq बाई ef। एकदम बिल्कुल ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो हम ये ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं कि मेरा करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। चलिए अब देखिए dp के जगह पे क्या हम ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लीजिए, लिख दीजिए, dp की जगह पे लिख दिए ab बाई डीई इज इक्वल टू dq की जगह पे हम ac लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू df, और pq इक्वल टू ef, pq बाई ef रहने दीजिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अल्टीमेटली ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है मेरा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, ये दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तभी तो जाकर के ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और हमने ये प्रूफ कर रखा है कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो अल्टीमेटली ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को कन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये BC और PQ को बराबर करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा AB तो DP के बराबर है, AC तो मेरा DQ के बराबर है। BC को जब तक PQ के बराबर नहीं करेंगे तब तक ये दोनों ट्रायंगल मेरा कन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो अल्टीमेट मेरा यहां पे टारगेट ये है कि BC को हमको PQ के बराबर करना है, BC को हमको PQ के बराबर करना है। ये मेरा इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो मेरा ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में कि AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF है, ये मेरा इक्वेशन 1 था। और इक्वेशन 2 अभी जस्ट हमने बनाया है, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू PQ बाई EF। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, यू विल ऑब्जर्व दैट AB बाई DE, AB बाई DE, AC बाई DF, AC बाई DF, कह सकते हैं कि LHS पोर्शन जो है मेरा वो इक्वल है, तो निश्चित तौर पे RHS भी मेरा इक्वल होगा कि नहीं होगा। चलिए एक को भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो AB बाई DE, AB बाई DE, LHS इक्वल तो RHS भी इक्वल। तो from 1 and 2 here we can write, from 1 and 2 we can write that BC by EF will be equal to PQ by EF। अब ये EF कैंसिल हो जाएगा, therefore we can write BC will be equal to PQ। अब क्या हो गया, ये BC मेरा PQ के बराबर हो गया। Now in triangle ABC and triangle DPQ, अब देखिएगा ध्यान से, यहां BC PQ के बराबर हम प्रूव कर दिए हैं, और ट्रायंगल ABC और DPQ में जब चलेंगे तो आप देखिएगा कि AB बराबर DP है, और ये मेरा बाई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन। फिर AC बराबर DQ है, ये भी मेरा बाई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और BC इक्वल टू PQ जस्ट प्रूव्ड अबव। यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम 3। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ एंड BC इक्वल टू PQ हो गया, तो देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। अब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो होगा वो एंगल P के बराबर होगा, और एंगल C जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। कैसे? बाई CPCT। एकदम बस एक दूसरे से सारा चीज कनेक्टेड है, बस थोड़ा सा केवल ध्यान देते जाना है। अब ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट जब कर दिए तो निश्चित तौर पर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब देखिए, एंगल A एंगल D के बराबर हो गया, एंगल B P के बराबर हो गया, और एंगल C Q के बराबर हो गया। बट यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप कहां पे गया, अभी हम एंगल भी एक जगह इक्वल कर चुके हैं। कहां पे? ये दोनों ट्रायंगल को जब हम ये PQ पैरेलल EF जब लिखे थे, PQ पैरेलल EF जब लिखे थे, तो एंगल E इक्वल टू एंगल P और एंगल F इक्वल टू एंगल Q भी है मेरा। यहां लिखेंगे एंड एंगल E इक्वल टू एंगल P, एंगल E इक्वल टू एंगल P एंड एंगल F इक्वल टू एंगल Q, एंगल F इक्वल टू एंगल Q। अब यहां पे दोनों को कंपेयर कीजिए, तो एंगल E इक्वल टू P एंड एंगल B इक्वल टू P, तो बताइए हम लिख सकते हैं कि एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E। यहां पे ये दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको और इसको, तो एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल E इक्वल टू एंगल P, RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। इन द सेम वे एंगल C इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल F इक्वल टू एंगल Q, तो फिर से यहाँ पे देखिए RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा, तो यहां से कह सकते हैं एंगल C इक्वल टू एंगल F, और ये मेरा एंगल A इक्वल टू एंगल D था, एंगल A इक्वल टू एंगल D ऑलरेडी यहाँ पे था। अब देखिए एंगल A मेरा एंगल D के बराबर हो गया, एंगल B E के बराबर हो गया, एंगल C एंगल F के बराबर हो गया। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ, यही प्रूफ करना था। आप देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो यहां से ये मेरा जो ट्रिपल S सिमिलरिटी का जो कंडीशन है वो प्रूव होता है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ यू थिंक दैट इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and share the videos to your friends. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.